house of Bollywood. He's the art behind some of Bollywood's most infectious and unforgettable anthems, and the voice behind Salman Khan in Hud Hud Dabangg and Jalte Diye, and in movies like Welcome Back and Jai Ho. So put your hands together and welcome the man who ignites every note, Shabab Sabri. Moving forward, let's take a moment to appreciate the platform that's brought us here today. Backstage isn't just a duo, it's a sonic revolution born from the creative chemistry of Ramiz and Sohail. Backstage is what happens when vision meets volume. They are creating a platform where everyone can share their story through sound. They are visionary Indian music composers and producers who are redefining the independent music landscape. So give it up for Backstage and the masterminds behind it, Ramiz and Sohail. Next up, let's welcome the multi-faced maestro of modern Bollywood, a true triple treat who effortlessly commands the stage as a singer, lyricist, and composer. Hailing from the legendary Sabri family, he takes the deep soul of Sufi tradition and transforms into pure contemporary magic. He's written songs in movies we've all watched, like Sikandar, Main Tera Hero, Jai Ho, and Bagi 4. A huge applause for Danish Sabri. When you think of the ultimate blend of culture, rhythm, and pure energy, one name should come to your mind. We are thrilled to welcome on stage the mastermind behind the beats that have redefined the modern Desi sound. He is the CEO of Desi Tadka Music, a dynamic Indian music label dedicated to promoting fresh talent and delivering high-quality songs across all genres. Let's give it up for Yash Hake. Now, थोड़ा सेंटर में ही आप हाँ बस लेफ्ट साइड से यस यस ठीक है This is the perfect position. now, I'd like Now, I'd like to welcome the rising star of the legendary Sabri lineage, a new age voice redefining the fusion of spiritual soul and modern pop, carrying forward a rich musical legacy while fearlessly shaping his own sound. He represents the younger generation of an iconic family that has given Indian music its most powerful spiritual anthems. Ladies and gentlemen, let's welcome on stage Rayan Sabri. Last but not the least, we're welcoming on stage the support system for Backstage, Mr. Siddharth, the director. Hello everyone, welcome to Miti by Kshitij. Let's wait for Let's start with
with Ramiz and Sohail. What part of a song do you feel the most attached to, even if it barely makes it to the final version? Give me your emoji first of all. Am I clear? So the thing is, the end part, when my grandfather started to sing, that feels more personal to me. And when we got the recording of our grandfathers, the scratch was only crafted so beautifully that it make it to equal. That's all I can say. That's very sweet. What emotion do you find the hardest to translate into music? I think music is all about emotions. Every emotion has a melody. Every emotion has a vibe. So if you're sad, you will listen to some sad song. If you're going for a trip, then there are songs. So there are very few songs which are basically for everything. Like Iqbal, it can be for your loved ones. It can be for your ancestors, anyone. It could be anyone, and that's how we made the song. So it's a mix of emotions. Absolutely. Next up, if you had to ask your younger self, if your younger self had to hear your music and saw your journey today, what would surprise them the most? I mean, we are 18-20 now. It's not yet kya hoga. But I would love if my grandfathers would have a life and they would have seen this. How would they react to this? Would they be surprised? Or, yeah, I would love to see their reaction on this one. Yes, that would be very special. So, while working on Iqbal, was there a moment in the song that surprised you creatively or you were proud of? So basically we started Iqbal with our grandfather's vocals. So the song started around that. It was basically only that part and we had to take it and utilize it. So the lucky part about was that this was not a part of backstage prior. But suddenly when we were sitting on the track, I told Yashbhai about this and he was very much interested in it. He was like, let's do it. There's nothing better than that. It's a legacy. And also when we sat along, so obviously it's my grandfather, the Sabri Brothers of India. Then Danish Chacha was there, Baba was there, and we started to jam around. And that jamming turned out to be so special that just around the corner of that end part, हमने पूरा गाना ऐसे design करा and Baba sang it so well, Rehan sang it so well, and the lyrics are written like that way. So it's a whole Sabri Brothers legacy in one song. Yes, it truly reflected the legacy and we all loved it. Now I'm going to ask Shabab Sabri a few questions. सर, आपका सफ़र अब तक बहुत खूबसूरत रहा है. क्या स्टेज पर कभी ऐसा पल आया है जब आपने सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि उससे पार कोई गहरी स्पिरिचुअल कनेक्शन हैव यू एवर फेल्ट? कैसे हैं? हेलो, कैसे हैं आप लोग? क्षितिज, मैं फिर दोबारा आपके रूबरू सेकंड टाइम बिकॉज रमेश सोहेल, यश भाई, सभी लोगों से मैं एक बात शेयर करूंगा क्योंकि मेरी जिंदगी में एक पल अपने वालिद के साथ बहुत अच्छा गुजरा है. मेरे वालिद, मेरे डैडी और मेरे अंकल इंडियन ओरिजिनल साबरी ब्रदर्स. पहले तो उनके लिए जोरदार ताली. जिनके आपने गाने सुने हैं जब आप बॉर्न भी नहीं होंगे, जितनी जनरेशन बैठी है. तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, सुना है? क्लैप तो नहीं चाहिए यार. हम उन्हें रूठ कर भूल जाने लगे, चाहतों की दुनिया में आ जा, बहुत गाने. तो उसके बाद हम लोगों ने अपना सफर आगे किया. मैंने डैडी के साथ इस फिल्म में भी गाया था और स्क्रीन पे भी मैं हूं, जो मेरा इम्पोर्टेंट पल है. तो प्यार के तो डरना क्या में तेरी जवानी सॉन्ग में डैडी की और अंकल के साथ मैं रहा हूं, सलमान भाई के साथ ये गाने के अंदर. और दूसरी बात, उसके बाद हम लोगों की एक सफ़र स्टार्ट हो गया. उसके बाद हम लोग अलग वे में निकल गए प्लेबैक. तो हुड़ हुड़ दबंग, तेरे नैना जलते दिए, दिल करे चूंचे, चलाओ ना नैनो जुबान, दिल मेरा मुफ्त का, बहुत गाने ये आप लोगों ने मेरे सुने हैं.
उसके साथ साथ दानिश का भी, दानिश आपके साथ खुद शेयर करेंगे बात, तो दानिश का भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मगर मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ, आप मेरी तरफ ध्यान रखें इस बात का, सिर्फ 2 मिनट लूंगा आप लोगों के। वजह क्या रही कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, चलता रहा सफर, चलता रहा, साबी ब्रदर्स का टैग लोग यूज करते रहे, चलता रहा, जो भी सफर गुजरा हमने ध्यान नहीं दिया। मगर मेरी खुशनसीबी ये है कि रमीश सुहेल को यश भाई जैसा आदमी मिला साथ में, और उसने ये बुनियाद स्टार्ट की और ये एक मंजिल खड़ी हुई। और इस मंजिल का जो ये सॉन्ग आपने सुना है, एक पल, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गाना है, क्योंकि हमने हुड़ हुड़ दबंग कर दिया, हम का पीनी है कर दिया, सब कुछ कर दिया। मगर एक ऐसा सॉन्ग जिसमें आज मेरे अंकल और डैडी को गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं, और उस 20 साल को रमीश सुहेल ने दोबारा से जिंदा किया है। एक जोरदार ताली रमीश सुहेल के लिए। और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और इस गाने को जो डिजाइन किया और जो रमीश सुहेल ने कंपोज किया, उसके क्या कहने। तुम जियो हजारों साल। और इस खुशी के अंदर एक चीज और है कि मेरा छोटा बेटा रयान, जैसा मैं प्यार किया तो डरना क्या, मैं तेरी जवानी के अंदर जब गाना आप देखेंगे तो उसमें तराना गाया मैंने, तो क्लासिकल गाया, ऐसे ही इसी एज में मेरे साथ रेहान ने गाया है। और सिड ने बहुत खूबसूरत डायरेक्शन किया है, और बैक स्टेज की पूरी टीम को मुबारकबाद, और मेरे मीडिया के जितने लोग हैं, मेरे दोस्त, लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच। आज के बदलते और ज़्यादा कमर्शियल दुनिया में आप सूफी म्यूजिक की असली रूह को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं? ये मेरे से सवाल है। जी जी आप। हेलो, देखिए, रूह वो गिजा है। गाने बजाने बहुत होते हैं, आप लोग आजकल जितने सुन रहे हैं, नए नए गाने आते हैं, वो कुछ पल के लिए होते हैं। जैसे अभी इतनी एल्बम आपने आई है, देखी है, उसका दम अली का रिजल्ट देखिए, ये गाने का भी एक नशा है और ये आपकी रूह तक जाएगा। तो कुछ गाने ऐसे होते हैं वो अपना असर छोड़ नहीं सकते, तो उसमें का ये गाना एक पल आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है दानिश सदरी जी। अपने पिताजी, अपने भाई और अगले जेनरेशन के साथ मिलकर एक गाना लिखना बहुत ही रेयर बात होती है। 3 पीढ़ियों के सबरी परिवार के साथ म्यूजिक क्रिएट करना कैसा अनुभव रहा? देखिए, ये गाने का नाम है एक पल, मगर इस एक पल में हमारे घराने की सदियां हैं, हमारे वालिद हैं, हमारे भाई हैं और भाई के बेटे हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाएंगे माइक का। तो ये एक पल ही गाना नहीं है, इसमें हमारे साबरी परिवार की पूरी सदियां हैं। और मेरे, आपने बहुत सारे, शेर शबाब भाई ने बोला कि अपने बारे में दानिश खुद बताएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे से अच्छी तारीफ मेरी कोई नहीं कर सकता, इसीलिए शबाब भाई ने मुझे बोला। और हमारे बड़े म्यूज़िक लॉन्च होते हैं, मगर आप मेरे चेहरे से भी देख रहे होंगे, मैं कहीं भी नहीं जाता, मगर ये गाना इतना अहम है हमारे घराने के लिए और मुझे आना पड़ा। और मैं इसके लिए ख़ास तौर से रमीश सुहेल को मुबारकबाद दूंगा, जिन्होंने इतना खूबसूरत गाना कंपोज किया। और शबाब भाई तो अच्छा गाते ही हैं और मैं भी अच्छा लिखता ही हूँ हमेशा से, और मैं अपनी तारीफ खुद करता हूँ, क्योंकि बाहर बहुत लोग घूम रहे हैं हमारी बुराई करने के लिए। तो आप लोग भी अपनी तारीफ खुद किया करें। आप लोगों को समझ में भी आ रहा है या आप लोग बस बैठे ही हैं? इतना बढ़िया डायलॉग मैंने बोला तो मुझे तो ताली बजा देनी चाहिए थी।
वे सब लोग बहुत पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं। हमने कॉलेज में नहीं पढ़ा, मगर हमने कॉलेज को पढ़ा है, और वो कॉलेज आज तुम्हारे सामने इकबाल अफजाल साहब है। तो मैं एक बार फिर यश भाई को, रमेश सुहेल को, रेयान साहब को, शबाब साहब को मुबारकबाद दूंगा कि एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपने बनाया है, और ऊपर वाला इस गाने को कामयाब करें। एक बार जोरदार तालियां रमेश सुहेल के लिए। आप सब लोग तारीफ के लायक है, इतना प्यारा गाना लिखा है। इस गाने पर काम करते वक्त क्या आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि सबरी लेगेसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप पर है? आप क्या चाहते हैं कि अगला जनरेशन सबरी नाम को आगे ले जाते हुए, उसकी रूह का बरकरार रखते हुए उसमें क्या नया जोड़े? देखिए, हमारा मकसद ही ये है कि ये साबरी घराना जो है, मैं आपको बताता हूँ, इसकी ये जो लेगेसी है, हमारे डैडी ने 50 साल पहले एक कव्वाली गाई थी, आज रंग है ए माँ रंग है, जिसमें शायद माला सिन्हा जी हैं और भरत भूषण जी हैं, और डैडी ने वो कव्वाली गाई थी, पिक्चराइजेशन उनके ऊपर हुआ था। तो इंडिया के ओरिजिनल साबरी ब्रदर्स, आप लोग ये बात बड़ी गौर से सुनना जितने लोग बैठे हुए हैं, इंडिया के ओरिजिनल साबरी ब्रदर्स वो हमारे डैडी थे और हमारे चाचा थे। उनके बाद जब वो ऑफ हुए तो उनके बाद जो उनके साथ तबले पे ढोलक पे थे वो भी कुर्ता पैजामा पहन के साबरी ब्रदर्स बन गए। ठीक है, तो अब इस लेगेसी को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि जो लोगों ने इस नाम को पकड़ा है साबरी ब्रदर्स को, वो आगे बढ़ाने के बजाय इसको पीछे लेके जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपकी? साबरी ब्रदर्स की लेगेसी को जो आगे बढ़ाना था उसको पीछे लेके जा रहे हैं। तो हम एक बार इस पे बात कर रहे थे, तब जाके रमेश सुहेल ने ये गाना कंपोज किया और ये आइडिया लेके आए कि डैडी दादा की आवाज़ को हम लेके आएंगे वापस। और आप लोगों ने बहुत सारे गाने सुनोगे डैडी के, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, आजा आजा तू आजा, आने वाले आजा आजा, हो मुबारक तुझे हम नवा मिल गया, हो मुबारक तुझे हम नवा मिल गया। रमेश भाई, ये तो सब लोग टेम्पो में भी हैं, ताली सही में जा रहे हैं। तो आपने बहुत सारे गाने सुनोगे, मगर इस साबरी ब्रदर्स की लेगेसी को अब मुझे लगता है कि हमारी बहुत जिम्मेदारी है इसका ख्याल रखना, क्योंकि साबरी ब्रदर्स एक ऐसा नाम है कि एक कव्वाली होती है जिसके अंदर इकबाल अफजाल साहब यानी हमारे डैडी गा रहे हैं। उस गाने का नाम राजकुमार मूवी की आजा आजा तू आजा आने वाले, उसके अंदर एक लाइन गा रहे हैं जो आज के लेजेंड सिंगर हैं सुखविंदर सिंह। पूरी कव्वाली कौन गा रहा है? इकबाल अफजाल साहब। एक लाइन गा रहे हैं सुखविंदर सिंह। पूरी कव्वाली कौन गा रहा है? उसमें 2-4 लाइनें गा रहे हैं सोनू निगम जी। मगर डैडी के ऑफ होने के बाद ये हुआ कि पूरी कव्वाली कोई और सिंगर गा रहा है और कोरस कौन कर रहा है? साबरी ब्रदर्स, जिन्होंने इस नाम को पकड़ा। तो हमारा ये अब हमने थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया है। मैं शबाब भाई से भी बात कर रहा था, क्योंकि आज खास तौर से मेरी आंखों में पानी आ गया जब मैंने अपने डैडी को यहाँ पे गाते हुए देखा। तो आज ये खास तौर से हमारा जो ये हमारे आने का मकसद ये था, और मेरा खास तौर से इस बात पे, इस टॉपिक पे बात करने का मकसद था कि साबरी ब्रदर्स एक इतना बड़ा नाम है कि अब हमें, जिनकी कंपोजिशन ऐसा नहीं कि इंडिया में गाई जाती होगी, उनकी कंपोजिशन इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में गाई जाती है, अब वो धीरे धीरे हमें लोगों तक लानी होगी। Rayan, welcome to Kshitij. Hello. Rayan, when did you first feel that music was not just a passion but your purpose? I realized that music is not just my passion but my purpose when I used to see my idol, my father, Shabab Sabri. So some sort of energy comes inside me and says that you can also sing. In which my mother also appreciated me and told like you should do it. That's beautiful. If you could describe Iqbal in one emotion, what would it be and why?
To be honest, I really don't know the meaning of the song, but I just like the composition and to be specific, my part. Wow. So, we're very curious to know what's next for Rayan Sabri that we should all be excited about. Are we going to see you more with Backstage? I also don't know about that, but let's hope for the best. Hello, Mr. Yash. Oh, hello, Mr. Yash, I'm sorry. Desi Tadka music brings together very different creative energies. What has collaborating with Ramiz and Sohail been like, and how do you keep that chemistry strong both on and off stage? Hello everyone. सबसे पहले बेटी बाई कॉलेज सीटीज देशी तड़का म्यूजिक की तरफ से और बैकस्टेज की तरफ से हम सब लोग आपके आभारी हैं। देशी तड़का म्यूजिक आज से 2 साल पहले हमने स्टार्ट किया। हमेशा एक नया स्टार्टअप होता है और वो नए इनोवेशन के साथ आगे बढ़ता है। तो हमारा जो फोकस है आने वाले समय का म्यूजिक को बनाना, लेकिन हम सब लोग ये जानते हैं, या आप में से बहुत सारे लोग एक सपना देख रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोगों को सिंगर बनना होगा, एक्टर बनना होगा, एंटरप्रेन्योर बनना होगा। हमारा सबका एक गोल होता है, लेकिन उस गोल के पीछे एक मोटिवेशन होता है, हमारे हीरोज होते हैं। हम किसी को ना किसी को फॉलो करते हैं और उस मोटिवेशन से हम आगे बढ़ते लाइफ में। देसी तड़का म्यूजिक एज अ म्यूजिक लेवल, क्योंकि हमेशा कोई भी इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो वहां पे पहले से सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद एक इनोवेशन आता है और कुछ यूनिक आइडियाज पे काम करता है। तो हमारा फोकस था कि आने वाले समय के म्यूजिक को डेवलप करना है, लेकिन ऊपर वाले की नीयत कुछ और होती है, क्योंकि जब तक हम किसी को अपना हीरो नहीं मानते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें यह पता नहीं था कि 2025 में रमीज और सोहेल हमें मिलेंगे और उनके वजह से आज हमारे पीछे जो लीजेंड्स है, आज सेकंड जनरेशन में शबाब शाबरी जी, दानिश शाबरी जी हमारे सामने हैं और थर्ड जनरेशन में रमीज सोहेल हमारे साथ है। तो 3 जनरेशन को हमने एक गाने में एक साथ लाया है और आज हम सब लोग EI की जनरेशन में है। आज दानिश शाबरी जी ने कहा कि मैंने अपने पापा को 20 साल बाद फिर से देखा तो आंखों में आंसू आ गए। तो आज ये पॉसिबल होता है EI की वजह से। तो ये जो गाना है एक पल, ये 3 जनरेशन को एक साथ आगे लेके चल रहा है और आने वाले समय में बैकस्टेज के साथ साथ हम अब जो हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स है, जिसमें हम नेक्स्ट स्टार एक ऐसा सिंगिंग का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें आप में से बहुत सारे लोग गाने वाले हैं, आप में से बहुत सारे लोग देशी तड़का म्यूजिक चैनल पे आने वाले हैं। क्योंकि हमेशा जब हम सामने बैठते तो हमारे अपने एक सपने होते कि हम कब हीरो बने। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और मैं दूसरों के लिए तालियां बजाता था तो एक ही सपना होता था कि उस स्टेज पे जाने का मौका कब मिलेगा और मेरे लिए तालियां कौन बजाएगा। तो मार्क माय वर्ड, अगले 1 साल, अगले 2 साल, अगले 3 साल आप में से बहुत सारे सिंगर्स को हम देशी तड़का म्यूजिक पे स्टार बनाएंगे। आप में से बहुत सारे एक्टर्स बनके देशी तड़का म्यूजिक पे आएंगे। एक म्यूजिक के अंदर एक लिरिक्स राइटर दानिश शाबरी जी हमारे बीच में हैं, वो बेहतरीन लिखते हैं। शबाब शाबरी जी हमारे बीच में हैं, रमीज एंड सोहेल के पापा। उनके सलमान खान के हमने कई सारे गाने सुने हैं, हम बार बार सुनते हैं।
दबंग जो सीरीज है उसमें शबाब शाबरी साहब ने गाने गाए हैं। तो हमारे साथ आज लीजेंड्स भी है, यंगस्टर्स भी है, नया टैलेंट भी है और हमें आने वाले समय नए टैलेंट के ऊपर काम करना है। तो जब एक एक्टर, एक सिंगर, एक लिरिक्स राइटर, एक डांसर, एक टेक्नीशियन, आप में से बहुत सारे लोग बैकएंड में काम करना चाहेंगे। ये गाना जब बनता है तो गाना लिखा जाता है, गाना गाया जाता है, उसका म्यूजिक किया जाता है, उसमें वीडियो में एक्टर्स आते हैं, उसके पीछे कोरियोग्राफर्स आते हैं, उसके पीछे डायरेक्टर्स आते हैं, सिद्धार्थ जी जैसे टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लोग। तो आप में से बहुत सारे लोग आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ सकते हैं किसी भी एक पार्ट में। जब कोई कंटेंट बनता है तो उसकी पावर होती है सबसे बड़ी आज की डेट में सोशल मीडिया। तो आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के लिए हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और मेरा ये कमिटमेंट है आप सबके साथ, क्षितिज के साथ, कि अगले कई सालों तक हम हर साल आपके साथ रहेंगे। तो 2026 का सिटी जब स्टार्ट होगा तो पहली स्पॉन्सरशिप हमारी रहेगी। अभी अगला साल देशी तड़का म्यूजिक पे बैकस्टेज के सारे गाने हैं। बहुत ही जल्दी हम आपको बेनी दयाल के साथ मिलेंगे। बर्तमीज दिल गाने पे आपने बहुत बार क्लब में, पार्टियों में डांस किया होगा और वैसा ही सेम एक बर्तमीज दिल हम दोबारा लेके आ रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन साउंड ट्रैक रमीज़ सोहेल ने डिजाइन किया है। आज हम उसको प्ले नहीं कर सकते लेकिन बहुत ही जल्दी हम आपके सामने लेके आएंगे और 100% आप उस गाने पे यहाँ पे खड़े होकर डांस करने वाले हैं। आगे चल के देशी तड़का म्यूजिक पे बेहतरीन गाने सुनने को मिलेंगे आपको और आप में से बहुत सारे लोगों को हम इनवाइट करना चाहेंगे। किसी भी रूप में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि हम अब आपके साथ परमानेंटली जुड़ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। Siddharth sir, you're almost like the support system for Backstage. How would you describe working with Backstage, working with Ramiz and Sohail? Hello Kshitij, and hello Nikhil. तो मेरे पास जब ये गाना आया तो 2 या 3 दिन पहले ही हमने गाड़ी में गाना सुना था। सोहेल के साथ जा रहे थे, यश के साथ जा रहे थे। तो बोला कि ये शूट करना है, डेट हमारे पास फिक्स है सिंगर्स की और हमें 2 दिन बाद ही शूट करना है। तो इट वॉज क्वाइट अ चैलेंजिंग थिंग बट फॉर्चुनेटली विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिलियंट टीम दिस एंटायर थिंग हैज फॉलन इन प्लेस। बहुत ही चैलेंजिंग था। शूट होने के टाइम पे भी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। तो सुबह 9 बजे स्टार्ट करना था, 11 बजे स्टार्ट हुआ। तो थिंग्स वर वेरी वेरी चैलेंजिंग बट विद द सपोर्ट ऑफ रमीज सोहेल, विद यश सर एंड शबाब सर, दानिश सर, ये entire thing has fallen in place beautifully. I'm very glad. And this very rightly said, this song actually put together entire 3 generations, including newer technologies like artificial intelligence, which has been introduced in this song, and the legacy of Ramiz Sohel's grandfathers. So it's a very esteemed project for me. I'm very thankful to the entire team for choosing me for this. Thank you. And also I would like to say that whole video is being directed by Mr. Siddharth, and the end part of my grandfather has been AI generated by Shaurya Kamal. So I would like to, have a big applause for him. Let's have a huge round of applause. Yes, I'm absolutely amazing there. So it was generated by AI, and the vocals that I used are the unreleased version. So that is originally done. So that's the thing. Wow, made the music video so much more special.
Let's make the atmosphere more fun. We have a few fun segments lined up for y'all. First up, we have lyric or lie. I will be saying 2 lines. You have to choose which one is real and which one is fake. First one, तुझे देखा तो ये जाना सनम. And the next is तुझे देखा तो ये माना सनम. हेलो. इतने बड़े लिरिक्स राइटर से तुम छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हो. तुझे देखा तो ये जाना सनम. Correct, correct. दूसरा वाला, अगर तुम मिल जाओ ये दुनिया छोड़ देंगे हम, या अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम. जमाना छोड़ देंगे हम. That was quick. आंखों में तेरी अजब सी बातें हैं, या आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं. मैं थोड़ा सा लाउड करेंगे इसको, क्योंकि हम लोग है ना सूफी घराने से हैं, हमें ना पूरी आवाज थोड़ा लाउड चाहिए. हेलो हेलो. मैं आपको अपना एक शेर सुनाता हूँ. यहाँ पर पूरा जेंजी क्राउड है, यूथ बैठा हुआ है. आप लोग तैयार है शेर सुनने के लिए? हेलो हेलो. मेरा एक शेर है कि मैं तेरे नखरे भी हंस हंस के उठा सकता हूं. दिल तो क्या मैं तुझे पलकों पे बिठा सकता हूं. तू अपने बर्थडे की एक बार मुझे डेट बता, मैं तुझे बुर्ज खलीफा भी दिला सकता हूं. एक और. ये देखो कितने खुश हो गए हैं. ये मजाक है, चिल्लाओ मत. कोई किसी को बुर्ज खलीफा दिलाता नहीं. ये एक शेर और सुनाता हूं. एक शेर है मेरा. तुमको पाया है तो खोया नहीं जाता हमसे. इतना रोए हैं कि रोया नहीं जाता हमसे. दर्द को दिल में समोया नहीं जाता हमसे. देखो यार, मैं जो शेर कहने वाला था मैं शेर ही भूल गया तुम्हारे चक्कर में. अपने हालात नहीं खो सकते. वाह वाह करो, वाह वाह. अपने हालात नहीं खो सकते, अश्क आंखों में नहीं रो सकते. उसको कल रात से समझा रहा हूं, लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते. अब बताओ उन गानों से अच्छा है ना ये? आगे बढ़ते हैं. तुझ में रब दिखता है या तुझ में सब दिखता है? देखिए, मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा दानिश के लिए, क्योंकि ये स्कूल दानिश का है. दानिश, मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ यश भाई, जो हमारी जनरेशन है. जैसे मैं अपनी दादी से बोलता था कि 4 शेर पैदा किए हैं मेरे पूरा फैमिली, टाइगर फैमिली. तो ऐसे ही मेरे यहाँ ये 3 शेर पैदा हुए हैं, और ऐसे ही मेरी मम्मी के यहाँ हम 2 शेर पैदा हुए हैं. तो मैं इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे आप लाइन बता रही है ना, दानिश में वो ताकत है और इसको इतनी नॉलेज है. मैं किसी के ऊपर तंज नहीं कर रहा हूँ, मीडिया वाले सुन रहे हैं ना आप लोग. दानिश ऐसा है ना कि तुझ में रब दिखता है और तुझ में सब दिखता है. तो दानिश आपको है कि तुझ में सब दिखता है. माशाल्लाह, उसको इतनी नॉलेज है लिरिकली,
हर चीज से ऊपर वाले ने आप नवाजा है। गाइए। और दूसरी बात, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, ये सब चलता है, जैसे यश भाई ने बोला अभी कि एआई का जमाना है, वीडियो हो गया है, वीडियो, क्योंकि मीडिया के सब लोग काबिल लोग बैठे हैं इसलिए शेयर कर रहा हूं बात, क्योंकि वीडियोग्राफी चलता है, डिजाइन हो जाता है, पाकिस्तान को भी कलर करके रिलीज कर दिया गया, ओके। मगर एक 20 साल से वॉइस ही नहीं है साबरी ब्रदर्स की, उनके पार्ट्स कुछ गायबे रखे हुए हैं, उसको डिजाइन करके अपनी कंपोजिंग में मर्ज करके उसको रिलीज करना, जो 20 साल से वॉइस ही नहीं है और उनके पार्ट्स हैं, अब उन्होंने किस अंदाज में गा रखे हैं, उनको डिजाइन करके अपने रोमांटिक सॉन्ग में लेके आना, डिजाइन करके, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं रमेश सूर्य को दुआएं दूंगा, उन्होंने जो हमारे लिए, दोनों भाइयों के लिए ये काम किया है, थैंक यू सो मच। और एक चीज और लास्ट में बोलूंगा, देखिएगा, मैं शोभा भाई की बात रोके कहूंगा, रमीश सुजैन के लिए उनके दादा के रूप में एआई है, मेरे पास मेरे बाप के रूप में मेरा भाई है। तो हम इतने खुशनसीब हैं कि एआई भी हमारे यहाँ है और हमारे बाप की तरह हमारे भाई भी यहाँ है। और ये गाना बस आखिर में ये कहूँगा कि ये गाना बड़ा मकबूल हो और आप लोगों को भी ये गाना सुनना भी है और लोगों को शेयर भी करना है। कितने लोगों को शेयर करना है? 3 लोगों को शेयर करना है और 3 लोगों से बोलना है कि तुम 3 लोगों को करोगे तो जय हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यश भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी, जैसे यश भाई ने बोला, एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल फैमिली की तरह कर रहा हूँ, मजा आ रहा है ना? हाँ। तो शबाब साहब के आपने गाने सुने हैं, अगर मजा ना आए तो सुनते रहो, मगर या जैसे बोला आप लोगों ने मेरे गाने सुने, हमका पीनी है, हुड़ू हुड़ू दबंगी, अपनी एक अलग बात है। शबाब साबरी नाम ये है नहीं है वो अलग बात है, मगर यश भाई ने जो डायलॉग बोला है, एक लाइन सुनना, खास बात मैं तो ये बोल रहा हूं, एक लाइन बोली है यश भाई ने कि शबाब साबरी रमीश सोहेल के फादर, मैं ये चाहता हूं कि ताउम्र तक मुझे लोग ऐसे ही बुलाएं, रमीश सोहेल के डैडी शबाब साबरी। थैंक यू सो मच। मैंने पूरी स्कूल लाइफ में, पूरे कॉलेज लाइफ में यही बोला कि आई एम शबाब साबरी सर। तो मैंने जितना आपका नाम यूज करके कहाँ कहाँ क्या क्या करा है उस हिसाब से तो ठीक है। गा दो गाना गा दो। तेरे लिए नाश्ता बनाने का नहीं है, ठीक है। पूछो एक ले लो, ले लो आप। ऑडियंस क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको पूछा, अभी इन सबके पास भी क्वेश्चंस है आपके लिए, तो हम ऑडियंस क्वेश्चंस, एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस हु हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज योर हैंड। Hi everybody, Manhal here. So I have a question for Ramesh sir. If you had to switch your lives with an artist, which artist would you choose? I think I don't want to switch my life. My life is going very well. I think it's fine. अभी के लिए तो yeah, no artist. Anyone else? My question is to Rayan sir. What do you look up to in your brothers that you take inspiration from? Their hard work. As I have seen, they were working on a project and they didn't sleep that night. So this shows their hard work and consistency. That's all. Hi,
मेरा क्वेश्चन दानिश सर के लिए है। आपने आपके पापा से ऐसी क्या चीज़ सीखी है जो आपको इंस्पायर करता है एंड आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहा है एंड आपको आगे की जनरेशन को भी सिखाना है? देखिएगा, मेरे डैडी जो थे वो हमारे घर पे एक महफिल हुआ करती थी। मेरे डैडी गाते तो थे, वो लिखते भी थे। जब वो बैठकर लिखते थे तो उनके शागिर्द जो थे वो कम से कम 7-8 जन बैठ जाते थे और वो बोलते थे कि कोई कहता था कि गज़ल लिख दो मुझे, कोई कहता था कि नात लिख दो, मतलब नात प्रॉफिट के हज़रत प्रॉफिट के बारे में आप ये लिख दो मुझे। तो क्या होता था, वो एक टाइम में एक को नात लिखवा रहे हैं, कोई रोमांटिक गाना लिखवा रहे हैं, कोई सैड सॉन्ग लिखवा रहे हैं, और वो अकेले आदमी जब स्टेज पे गाते थे तो गाते गाते फिल्म भी, मतलब हाथ के हाथ स्टेज पर गाना और उसके गाते गाते ही लिख देना, तो उनकी बड़ी खासियत चीज़ थी वो। और वो थोड़ी कहीं इतनी सी तो मुझ में है। तो मैं चाहता हूँ कि हर आर्टिस्ट ऐसा बने कि ऐसा नहीं कि जो मैं रट गया हूँ वही मुझे गाना है, मुझे वो गाना है जो पब्लिक चाहती है। ताली बजा दें। बिल्कुल बोलते था नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं जब से ये सफ़र स्टार्ट किया है तो ऊपर वाले तरह में सब अच्छा ही अच्छा होता चला गया। क्योंकि जब प्यार के तो डरना कैसे स्टार्ट किया था और आज हुड़ हुड़ दमन तक हूँ, और उसके बाद रवि सोही के साथ, यजवा के साथ सब हो गया। कोई ऐसा तो है नहीं, मगर मेरा एक मानना है, जब मैं स्टेज करता हूँ तो मेरा शुरू से ये रहा है। एक तो अभी मेरा सोचना ये है कि कोई फैन मैन तो होता नहीं, कोई आपको प्यार करता है तो उसको वैसी मोहब्बत देना चाहिए, वैसा ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। और हमारे जब भी मैं कोई स्टेज करता हूँ, जहाँ पे मैं जाता हूँ या गाता हूँ, कुछ सुनाता हूँ, तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि ऊपर वाले से ये दुआ करके चढ़ता हूँ कि उससे जब मैं स्टेज पर जा रहा हूँ तब मुझे इतनी इज्जत मिले या ना मिले, इतना प्यार मिले या ना मिले, मगर जब मैं स्टेज से उतरूँ तो सब मुझसे प्यार से मिले। बस ये मेरी प्रार्थना रहती है ऊपर वाले से। सर क्या कहना चाहिए सॉन्ग के बारे में, कैसा अनुभव रहा? देखिए, ये सवाल मेरा आपसे है। सॉन्ग बढ़िया है, कैसा लगा आपको? हाँ, और रही बात ये कि जिस स्टाइल से रमेश सोही ने कंपोज किया है और उसको आगे बढ़ाया है, कि मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गाना ये रहा है, क्योंकि इसमें हम लोगों की तीनों जनरेशन, मेरे वालिद, मेरे चाचा, मैं, मेरा भाई और मेरे तीनों बेटे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सॉन्ग रहा है मेरी लाइफ में। और कुछ क्या कहना चाहोगे कि अपने बेटों की तीसरी पीढ़ी है आपकी? जी, ये हमारी थर्ड जनरेशन है, और जिस तरीके से वालिद साहब और चाचा ने नाम किया है, उसी को परंपरा को लेकर हम दोनों भाई बड़े, जिसमें दानिश ने बहुत अच्छे अच्छे गाने, मैं तो सुपरमैन और सलमान का फैन और डिंग डंग करती है, ये वो बहुत गाने लिखे हैं। और दानिश बहुत अच्छा कंपोज भी करता है, बहुत अच्छा लिखता भी है। तो ये तो दानिश की रही बात। और रमेश सोही की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि जिस तरीके से काम कर रहे हैं
वो काम करना एक आम बात है। जिस लेगेसी को ये लोग लेकर आए हैं, हमारे वालिद और हमारे चाचा की वॉइस को, आज से 40 साल पुरानी वॉइस, ये आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि 40 साल पुरानी वॉइस, 20 साल तो डैडी को और अंकल को ऑफ हुआ है, और साबिर ब्रदर्स को 40 साल के बाद उनकी वॉइस ढूंढ के लेकर आना और अपने गाने में मर्ज करना, ये बहुत बड़े एक फन की बात है। तो रमेश सोहेल के लिए मेरी तरफ से ब्लेसिंग है। आपने बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए गाना गाया भाई, सलमान की एक से एक हिट फिल्मों के गाने दिए आपने, अच्छा बिजनेस किया है। अपने बेटों के बारे में अगर कोई फिल्म में आ रहे हैं गाने? जी देखिए, मेरे ये बेटे हैं और जिस तरीके से काम कर रहे हैं अपनी मेहनत से, और इनके साथ मेरे भाई जो मिस्टर यश हैं, वो कांधे से कांधा लगा के चल रहे हैं, और जिस तरह से जिस लेवल से काम कर रहे हैं। रमेश सोहेल की आने वाली 2-3 मूवी हैं जो बॉलीवुड भी हैं और साउथ इंडियन मूवी में भी इन लोगों ने म्यूजिक दिया है, और उसके साथ साथ ये सब काम एक इजीली है, हो जाएगा जो तकदीर में लिखा है। मगर जिस पल के लिए हम आए हैं यहाँ पर, अभी उसकी बात करते हैं। ये एक पल सॉन्ग, यानी कि 3rd जनरेशन रेगुलर, उस्ताद इकबाल साहब, उस्ताद अफजाल साहब, शबाब साहब, दानिश साहब और रमेश सोहेल, रेहान, तो उसको कंटिन्यूटी करते हुए आए, तो ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा सॉन्ग है। भाई आप कितना प्राउड फील करते हो? आपके बच्चे बैठे हैं और इतनी पब्लिक है, पुलिस जाहिर सी बात है, मतलब ये वालिद के लिए, चाचा के लिए बड़ा खुशी और मसरत का मकाम होता है जब, और देखिएगा एक रिश्ता बाप और बेटे का ही ऐसा होता है कि जब बेटा उड़ान भरता है तो बाप खुश होता है कि मेरा बेटा है, और जब बाप उड़ान भरता है तो बच्चा फख्र से कहता है कि मेरा बाप है। तो ये रिश्ता बड़ा ही खूबसूरत रिश्ता है, और हमारे बच्चे कामयाब हो रहे हैं, तो उसमें यही कहेंगे कि खुदा को बहुत कामयाबी दे, और जितना मकाम हमारे वालिद या हमने किया है ये हमसे आगे जाएं, और ये जाएंगे क्योंकि इनके अंदर वो चीज़ें हम देख रहे हैं। इंशाल्लाह ये बहुत नाम करेंगे, हमसे भी ज़्यादा नाम करेंगे आने वाले वक्तों में। आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। 3 जनरेशन को एक साथ इस गाने में दिखाने का कॉन्सेप्ट किसके माइंड में आया था? ये रमेश भाई सोहेल के दिमाग में था, हमारे तो दिमाग में नहीं थी चीज़ें। मैंने कहा था ना कि आपसे बताया था मैंने कि जब मुझे अपने पापा की याद आई तो मैंने देख लिया अपना बड़ा भाई, मगर जब इन्हें दादा की याद आई तो ये लेके आए AI, तो ये सब रमेश भाई और ये सोहेल ने किया। और मतलब हमारे घर में हमारे इतने बड़े बड़े गाने आते हैं। अभी हाल ही में साल की जो सबसे बड़ी पिक्चरें थी वो मैंने की हैं, जैसे वॉर 2 में मैंने गाया था, सिकंदर में मैंने लिखा था, बागी 4, मस्ती 4, ये सब मूवीज़ मैंने की थी। मैं किसी के म्यूज़िक प्रमोशन में भी नहीं पहुंच पाया, मगर ये हमारे घर के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए इतना बड़ा गाना है कि हमारे घर में जब ये गाना, जब इसका ऑडियो आया था तो ऑडियो आने पर ही हमारे घर में सब लोग वो ऑडियो सुन के रोने लगे, और रमेश सोहेल को दुआ देने लगे कि तुमने ये सोचा और वो नए तरीके से डैडी की वॉइस लेके आए। तो हमारी ख़ास तौर से दिली दुआएं हैं रमेश और सोहेल को, इंशाल्लाह ये बहुत आराम करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। रमेश सोहेल से अगर बात करें सर, क्या कहना चाहोगे आज के जो लॉन्च है उसके लिए? पापा चाचा सब साथ बैठे हैं, आप गाने को कंपोज करने का मौका मिला आपको, क्योंकि उन्होंने बताया कि पहले से लिखा हुआ था, यूज़ नहीं किया था सर, वो मौका मिला आपको, तो उसके बारे में क्या शेयर करना है? सर दिस इज अ ड्रीम कोलैबोरेशन टू अस कि हम अपने शुरुआत में ये कमिंग ऑन बोर्ड विद आवर ग्रैंडफादर्स, विद आवर चाचा, विद आवर पापा, एंड व्हाट मोर कैन वी आस्क? ये गाने का जब आइडिया आया, सो वी ऑलवेज वांटेड टू डू अ सॉन्ग इन व्हिच ऑल द 3 जनरेशन द लेगेसी ऑफ फैमिली बिजनेस कंटिन्यूज। तो इट्स ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड कि हमने ये गाना कर पाए, एंड आई विश दिस सक्सीड्स। लाइक आपने हमारे पुराने गानों को इतना प्यार दिया, मैं चाहता हूँ आपसे भी काफ़ी प्यार दें। यस जी, आपसे सवाल है, सेकंड टाइम दूसरी बार इनके साथ में कोलैबोरेट हुआ है गाना, तो क्या कहना चाहोगे? मतलब
कोलैबोरेशन नहीं हुआ बैकस्टेज के केवल 7 गाने हैं। 7 गाने में से 5 गाने रिलीज हो चुके हैं, 5वां गाना है। और मैं शुक्र अदा करता हूँ पूरे परिवार का, 3 जनरेशन को एक गाने में साथ लाया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है देशी तड़का म्यूजिक के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज होता है म्यूजिक में पुराने गानों का रिमिक करना, उसके राइट्स को लेना। वाह। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे बड़ी अचीवमेंट देशी तड़का म्यूजिक के लिए फ्यूचर में कभी नहीं हो सकती। लीजेंड सबरी फैमिली और उनकी वॉइस मिलना, ये कोई खाने का काम तो है ही नहीं है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है देशी तड़का म्यूजिक के लिए, और ये स्पेशली पॉसिबल हुआ रमेश गोयल की वजह से, शबाब शाबरी साहब की वजह से, दानी शाबरी साहब की वजह से। सर आपसे जानना चाहिए आपके इंस्पिरेशन कौन है? मेरे इंस्पिरेशन मेरे डैडी है। बिकॉज मैं बचपन से उन्हें देखता आ रहा हूँ, तो जब भी मैं उन्हें देखता था कि मुझे भी लगता था कि मुझे भी अपने डैडी से गाना है। सो वही मेरी इंस्पिरेशन और मेरा आइडल है। और मैं अरे ये तो चाचा है मेरे, ये भी बहुत ज़्यादा है, मतलब आज ही सरगम सिखाई, आज ही सरगम सिखाई। सर लास्ट भी आपसे जानना चाहिए, क्या कहेंगे आज के बारे में, आज का जो लॉन्च है उसके बारे में बात करें। मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं यूजली एक्टर्स या टेक्नोलॉजी, गेम टेक्नोलॉजी वगैरह में काम करता हूँ। तो सॉन्ग क्रिएट करना अभी रिसेंट में स्टार्ट किया, और मैं इतना अच्छे ग्रुप के साथ मैं जुड़ूंगा वो मैंने इमेजिन नहीं किया, तो वो भी इतना जल्दी। सो दिस हैज़ बीन अ वेरी इवेंटफुल थिंग। थैंक यू सर। सब बताओ गाने के पूरे बारे में। थैंक यू मीडिया। एक रमीज से तो ले ले। रमेश को तो पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं, मेन आदमी को पूछा नहीं तुमने। पूरा रमीज बताना। हाँ रमीज आज के बारे में क्या कहना चाहो, कितना बड़ा मोमेंट आज? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत थैंकफुल हूँ सबके लिए, यश भाई फॉर द अपॉर्चुनिटी, माय फादर एंड माय अंकल हु आर ऑलवेज देयर फॉर मी, एंड माय ब्रदर, माय पावर, एंड रयान इज हियर, एंड सिद्धार्थ, माय होल टीम। सो बेसिकली हमारे पास ऐसा हुआ था कि साबिर ब्रदर्स, हमें मतलब यही था कि हम लोग अपने घर में यही सभी सुनते हैं। हम लोग ने मे बी बाहर मार्केट में वी हैव टू ब्रिंग द ट्रेंड, बट अंदर अपने सोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें अपने रूट्स को सुनना पड़ता है। तो हम जब सारे गाने सुन रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी कि दिस इज़ व्हाट इज़ द मेन म्यूज़िक, जो म्यूज़िक का असली सोल है, जो रूह है, वो इन सब गानों में थी। तो आउट ऑफ दैट मैंने और सोल ने डिसाइड किया कि हम लोगों को अपने दादा का जो वोकल्स है, जो कि अनरिलीज ट्रैक्स हैं और जो कि स्टेज परफॉर्मेंसेज हैं, उनमें से वी हैव टू टेक समथिंग आउट एंड वी हैव टू मेक अ सॉन्ग। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने वर्क किया, एंड ऑब्वियसली अभी बाबा एंड चाचा भी उस चीज़ से बहुत इमोशनली कनेक्टेड है, तो उनको भी ऐसा टाइम नहीं लगा किसी चीज़ को फेस करने में कि कैसे क्या करना है, दे वर लाइक वी आर ऑन इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी मेड द सॉन्ग, इट वाज अमेजिंग। रेयान का आना वाज जस्ट लाइक बाबा का आना इन तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है। सो सेम वे रेयान हैज आल्सो डन हिज जॉब वेरी वेल, एंड आई थिंक ये गाना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने इसको नॉट ओनली ऑडियो बट विजुअली भी हमने अपने ग्रैंडफादर को यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश की, हमारी टीम के साथ, सिद्धार्थ, शौर्य एंड आवर होल टीम। And I guess this song will be a very good song for lifetime. ये हमारे लिए अचीवमेंट है कि हम लोगों ने एक पूरी जनरेशन साथ में मिलके बैठ के गाना डिज़ाइन किया। सुना सर मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से है, आपके दादाजी के लेगेसी को आपके पिताजी, आपके चाचा शानदार तरीके से आगे लेके गए। एज ए थर्ड जनरेशन आपको क्या लगता है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आप पे है, दादाजी की और पिताजी, चाचा, इनकी लेगेसी को और आगे लेके? ये लेगेसी जो साबिर ब्रदर्स की है कि इंडिया में ओरिजिनेट हुई है हमारे ग्रैंडफादर से। उन्होंने इसकी रूट्स मतलब दे आर बोथ द सीड, तो उनसे ये शुरुआत हुई, एंड ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी अ लेगेसी, अ बिगर लेगेसी आफ्टर देम हु विल कंटिन्यू। एंड माशाल्लाह माय फादर एंड माय चाचा, दे हैव कंटिन्यूड देयर ओन personal lives, but having the Sabri legacy continued, and inshallah it's not a burden maybe, but it's a difficult task to carry that forward, but I guess because of the support system we have at our place, it's not a big problem for us.